أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ما شاء الله. فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء الله. قصیدہ بوتا شریف شاء شاعر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين.
أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہم اللہ پاک کے کرم سے فضل سے ہفتہ وار محفل ذکر کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی میں چند وظائف پڑھاؤں گا جو ہمارے بزرگوں نے جن وظائف کو لکھا اور برکت کے لیے، شفا کے لیے، صحت کے لیے، کامیابی کے لیے جو بھی مشکل آتی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ پاک کا یہ نیک پاکیزہ بابرکت کلام پڑھتے. انشاءاللہ آئندہ آنے والی محفلوں میں بھی آگے رمضان شریف کا نیک پاکیزہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں بھی مختصر 30 منٹ سے 40 منٹ کی محفل ہوگی جس طرح آج کی محفل ہے. اور مختصر سی محفل میں ہم رمضان شریف کے مختلف پہلو، مختلف ایسپیکٹس کے اوپر ہم بات کریں گے، جس میں رمضان شریف کے فضائل، روزوں کی برکت اور اس کے علاوہ پہلے عشرے میں کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، کیا عبادات کرنی چاہیے اور کیا کیا ہم نے ذکر اذکار پہلے عشرے میں کرنا ہے، دوسرے عشرے میں کیا ذکر اذکار کرنا ہے، کیا دعائیں کرنی ہیں، کیا عبادات کرنی ہیں. اسی طرح سے تمام وہ رمضان شریف کا ایک بڑا ہی خوبصورت ترتیب مرتب فرمائی ہے جو بڑی مختصر 30 منٹ کی نشست ہوا کرے گی اور میری کوشش ہوگی کہ وہ نشست روزانہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. اب ختم شریف ہم شروع کرتے ہیں. آپ تمام احباب جو آپ کے دل میں نیک حاجات ہیں، جو بیمار ہیں وہ شفا کی نیت سے پڑھیں، جو بے روزگار ہیں وہ رزق میں برکت کی نیت سے پڑھیں، جو پریشان حال ہیں وہ اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھ کے کہ اللہ پاک مجھے کلام الہی کی برکت سے میری پریشانی کو دور فرمائے. جو بے اولاد ہے وہ اولاد نرینہ کی برکت اور اولاد نرینہ کی دعا کر کے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے. اسی طرح سے مختلف حاجات آپ لوگ اپنے دل میں رکھیں اور میرے ساتھ یہ تمام وظائف پڑھیں. تمام احباب نیت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ شریف 11 مرتبہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 تیسرا کلمہ 3 مرتبہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
दरूद इब्राहिमी एक मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आयत करीमा 11 मरतबा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सूरह फातिहा एक मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सूरह इखलास 3 मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह पाक के ये पाकीज़ा बाबरकत मुक़द्दस कलाम और जो आयात हैं ये तमाम अहबाब ने मेरे साथ मिल के पढ़नी है, आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के। अगर आप इन अल्लाह पाक के कलाम की बरक़ात या अगर आप इनके मायने और मफ़हूम आपको पता हो, इनका मकसद पता हो कि ये एक एक लफ्ज़ एक एक आयत मुक़द्दसा इसकी क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है, क्या बरक़ात हैं, तो आपको बखूबी इल्म होगा कि ये जो कलाम है ये शफा के लिए भी है, ये हाजात के पूरा करने के लिए भी है, ये रिस्क में बरकत के लिए भी है, और उसके अलावा जो आपके दिल में ख्वाहिश हो, ये उसके अलावा बहुत सी ऐसी जो परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, इम्तिहानात हैं, उनको दूर करने के लिए है। तो इंशाअल्लाह मज़ीद आने वाले दिनों में हम इसमें कोशिश करेंगे कि एक अल्लाह पाक का इसम शरीफ, एक आयत मुक़द्दसा, उसका मफ़हूम भी साथ आपको समझाएं, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं आपको मालूम हो कि आप कितना पाकीज़ा और बाबरकत कलाम पढ़ रहे हैं, ताकि आप सही खुशू और खुजू के साथ पढ़ें। तो तमाम अहबाब मेरे साथ मिल के पढ़ें। अल्लाहुल हसीब 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 अल्लाहुल हसीब। या वहाब 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 या वहाब। या लतीफ 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 या लतीफ। या मुजीबुस समीउ 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 या मुजीबुस समीउ। या बारियो 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 या बारियो
या काबिदु 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 या अलीयुल अज़ीम 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 या हय्यु या क़य्यूम 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 या ज़ुल जलाल वल इकराम 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 या हन्नानो या मन्नानो 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 या हन्नानो या गफूरो या रहीम 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 या जवादो या करीमो 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 या अल्लामल गयूब 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 या वदूदो या अतूफो 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 या बाकियो 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 या बासितो 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 या कबीर मुतआल 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 या सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम सलामुन कौलन 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 मिर रब्बिर रहीम सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम का जिक्र ज़्यादा करें, अल्लाह पाक सलामती, सेहत और शफात आप फरमाए। ख़ास तौर पे आजकल के हालात के मुताबिक
सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन 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 मिर रब्बिर रहीम। या बदियल अजाइब बिल खैर, 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 या बदियल अजाइब बिल खैर। या अरहमुर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या या अल्लाह या रहमान, 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 या अल्लाह या रहमान। सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक से सब माफ़ी मांगे ताकि अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए और पूरे आलम इंसानियत को इस वबा से बचाए, इस बीमारी से और मुश्किल से बचाए। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। अब तमाम अहबाब जो इधर मौजूद हैं महफिल में और जो हमें देख रहे हैं, वो चंद मिनट के लिए आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के अल्लाह का ज़िक्र करें और इस नीयत से करें कि अल्लाह पाक अपने ज़िक्र की बरकत के तुफ़ैल सब पे अपना करम फजल रहमत अता फरमाए और अपने ज़िक्र की पाकीज़गी की बरकत के तुफ़ैल अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए, सब के मुश्किलों को आसान फरमाए। जिस तरह से हमारे बुजुर्ग अल्लाह का जिक्र किया करते थे, अगर उस तरह से करें
तो आपको यकीनन एक तो अल्लाह का ज़िक्र करने का तो फ़ायदा और बरक़ात हैं ही हैं, लेकिन उस तरह से आपको जिस्मानी भी बहुत से फ़ायदे होंगे। जब सांस अंदर लें अपने, तो सांस के साथ अल्लाह की सदा भी अंदर जाए, और जब सांस बाहर लें तो सांस के साथ हू की सदा बाहर आए। इस तरह से अल्लाह, फिर सांस बाहर लेते हू, अल्लाह हू, इस तरह से आपने करना है। और ये जो आज से कई सौ साल पहले हमारे बुजुर्ग किया करते थे, आज साइंस ने और मुख्तलिफ ममालिक में कहीं मेडिटेशन के नाम पे, कहीं मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के नाम पे, मुख्तलिफ थेरेपीज़ के नाम पे वो आपकी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की आपकी एक्सरसाइजेस होती हैं कि जब आप सांस अंदर इनहेल करते हैं, आपने कितने मिनट्स, कितने सेकंड सांस को अंदर रोकना है और फिर सांस को जब बाहर निकालना है। तो लेकिन हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, हम वो एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन उस एक्सरसाइज के साथ हम अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का बाबरकत नाम अपने सांस के साथ अंदर लेके जा रहे हैं और बाहर लेकर आ रहे हैं, जो हम ये समझते हैं कि वो उस एक्सरसाइज से भी ज़्यादा उसकी बरक़ात हैं और अल्लाह पाक शफात आप फरमाता है। इंशाअल्लाह इस पे आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अब आप सब जब सांस अंदर इनहेल करें तो आप अपने सांस के साथ अल्लाह, और जब बाहर लें तो हु, अल्लाह हु, अल्लाह हु, इस तरह से एक तरीके के साथ आप लोगों ने करना है। और ये आप देखेंगे कि आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। चंद मिनट बाद ही आपके जहन को सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, आपके पूरा जिस्म पुरसकून हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि जैसे आपको कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ है ही नहीं। ख़ास तौर पे जो बीमार हैं उनको ऐसे लगेगा कि अल्लाह पाक ने उनको शफात अता फरमा दी है। तो तमाम अहबाब इस प्रैक्टिस को मेरे साथ करें। अल्लाह हू, 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 अल्लाह हू। इंशाअल्लाह आप लोग ये जिक्र हर रोज अगर चंद मिनट सोने से कबल करें तो यकीनन आप इसके चंद ही दिनों में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि कितना ज़्यादा
آپ کی ہیلتھ کے اوپر اس کا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا زیادہ آپ پرسکون سو رہے ہیں اور کتنی آپ کو پرسکون نیند آ رہی ہے، آپ کا ذہن کتنا پرسکون ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے آپ کو اس کے روحانی جسمانی فوائد ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے ذکر کی برکت کے طفیل آپ سب کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اس موذی بیماری سے سب کو محفوظ فرمائے. اب تمام احباب چند منٹ کلمہ شریف کا ذکر کریں تاکہ کلمہ شریف کی ذکر کی برکات سے اللہ پاک جو ہے سب پہ کرم فضل فرمائے. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا اللہ پاک کے فضل کرم سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے ذکر، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آج کی یہ نیک پاکیزہ بابرکت محفل عطا فرمائی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ جیسے کہ آج میں پہلے آپ سب سے ذکر کر چکا ہوں کہ رمضان شریف چند ہی دنوں بعد رمضان کی آمد ہے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی سب کو برکات نصیب فرمائے، سب کو صحت عطا فرمائے، سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم سب کو رمضان شریف کے فیوز و برکات نصیب فرمائے. تو میرے بھائیوں، ہم رمضان شریف میں باقاعدہ روزانہ اسی طرح کی مختصر 30 منٹ کی محفل رکھا کریں گے اور آپ کوشش کریے گا کہ آپ لوگ
वक्त पे मौजूद हों ताकि आप रोज़ाना हर रमज़ान के हर दिन की जो अहमियत है, जो फजीलत है, बिलखसूस जो हमारी हर रमज़ान में जो न जो वाक़या और मारके हुए हैं, जो गज़वात हुई हैं, जो अहम रमज़ान शरीफ में जो जो अहम वाक़यात हैं, गज़वात हैं, और उसके अलावा जो अहम इबादात हैं, जो वज़ाइफ हैं, जो अज़कार हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक नशिस्त मुख्तसर सी रखेंगे इस्तक़बाल रमज़ान की, और रमज़ान में रोज़े रखने के फ़वाइद और उसमें हम सब डिस्कस करेंगे। इसी तरह से फिर जिस तरह 10 रमज़ान शरीफ को हज़रत खदीजा आपका विसाल हुआ, आप रज़ी अल्लाह ताला के विसाल के हवाले से आपकी शख्सियत, आपका इखलाक, आपका किरदार, उसको डिस्कस करेंगे। और हमारी ख़वातीन को आज जो ज़रूरत है जिन रोल मॉडल्स की, वो हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत खदीजा आप जैसी हस्तियों की ज़रूरत है कि हम उनको फॉलो करें। उसमें हम उनकी तालीमात, उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर किया, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसी तरह से 17 रमज़ान को ग़ज़वा बदर जो मुसलमानों की पहली फ़तह थी, किस तरह से मुसलमानों ने वो हासिल की, कितने मुसलमान उसमें शामिल हुए, कौन कौन से मुसलमान सहाबा कराम उसमें शामिल हुए, कौन शहीद हुए। और इस तरह से हम हर रमज़ान में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करेंगे। इबादात के साथ साथ इस्लामिक हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और इस्लामिक फ़िलासफ़ी डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह से बहैसियत मुसलमान अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। तो आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में मैं चंद गुजारिशात आपसे करना चाहूँगा जो मैंने आज बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, दीगर अहादीस कुतुब में ये हदीस पाक मौजूद हैं, और हम इसको रमज़ान में एक दिन इसका पूरा रखेंगे। आज सिर्फ इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले कि मुसलमान की सिफ़ात के ऊपर, कि मुसलमान के कैरेक्टर के ऊपर, कि मुसलमान का कैरेक्टर किस तरह से होना चाहिए। और इसके ऊपर जो हदीस शरीफ है वो बुखारी शरीफ में भी, मुस्लिम शरीफ में भी, इमाम मुस्लिम ने भी इसको अपनी कुतब में लिखा, और इसके अलावा दीगर अहादीस कुतब में इब्ने माजा में भी मौजूद है। मुसलमानों का कैरेक्टर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया एक शख्स ने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मुसलमान अफजल है, यानी कौन सा मुसलमान बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। यानी मुसलमानों के कैरेक्टर के ऊपर इस हदीस शरीफ की बात हो रही है कि मुसलमान, वो मुसलमान बेहतर है कि जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो, यानी दूसरे मुसलमान को वो कोई नुकसान ना पहुँचाए, अपनी ज़ुबान से उसकी दिल आज़ारी ना करे, उसकी गीबत ना करे, उसकी बुराई ना करे, उसके लिए हसद ना रखे, और फिर दूसरा हिस्सा जो है अपने हाथ से, यानी उस पर जुल्म ना करे, उस पर जबर ना करे, उसका हक ना मारे। तो मेरे भाइयों, इस पे हम पूरा मुसलमानों के किरदार के ऊपर, कि मुसलमानों का किरदार किस तरह से होना चाहिए, इसके ऊपर हम पूरी एक नशिस्त 30 मिनट्स की रखेंगे। आज हम मुख्तसर
क्योंकि हमारे पास चंद मिनट मौजूद हैं, इसकी गुफ्तगू करते हैं। और करोना वायरस या आजकल जिस तरह से मुसलमान मुश्किलात में हैं, बल्कि पूरी इंसानियत जो मुश्किलात में है, तो ये हदीस शरीफ मैंने बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, जामिया तिरमिज़ी में भी ये मौजूद है। और इसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसको अपनी मसनद में लिखा, और इमाम बैकी ने भी लिखा, इमाम नसाई ने भी लिखा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना वो उस पर जुल्म करता है और ना वो उसको बेयारो मददगार छोड़ता है। ये हदीस का पहला हिस्सा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना तो वो उस पर जुल्म करता है, ना ही उसको बेयारो मददगार छोड़ता है। उसके बाद अगला हिस्सा तरबियत का मुसलमानों की। जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई करता है तो अल्लाह ताला उसकी हाजत रवाई करता है। यानी इसमें हमें सबसे पहले हदीस का जो पहला हिस्सा था वो बताया गया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है और वो उस पर जुल्म नहीं करता। दूसरे हिस्से में बताया गया कि वो अपने भाई की हाजत रवाई करता है, यानी उसकी मुश्किल को आसान करता है। तीसरे हिस्से में बताया गया कि जो शख्स किसी मुसलमान की दुनियावी मुश्किल को हल करता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी मुश्किलात में से एक मुश्किल को हल फरमाएगा। यानी तीसरा जो इस हदीस पाक में सबक मिलता है कि जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की दुनियावी मुश्किल हल करेगा। दुनियावी मुश्किलात आपको बखूबी अंदाज़ा है कि क्या क्या मुश्किलात हैं आजकल के दौर में, क्या क्या मसाइल हैं। जो शख्स अपने मुसलमान की दुनियावी मुश्किलात को हल करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसकी मुश्किलात में से एक मुश्किल को हल फरमाएगा। और फिर आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट हदीस पाक का आखिरी मैसेज है, ये एक ही हदीस पाक है जिसमें हमें 5 पैगाम मिलते हैं। और ये बुखारी शरीफ में भी हदीस पाक मौजूद है, इमाम नसाई ने भी इसको लिखा, इमाम मुस्लिम ने भी लिखा, इसको इमाम बैकी ने भी लिखा, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इस हदीस पाक को लिखा। आखिरी हदीस पाक का जो हिस्सा है, जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी सतरपोशी करता है। यानी जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी, आज सब एक दूसरे के ऐब महफिलों में बैठ के डिस्कस करते हैं और उसको बड़ी खुशी के साथ एक दूसरे को बता रहे होते हैं, पर्दाफाश कर देते हैं, पर्दापोशी नहीं करते। ऐसे शख्स जो किसी दूसरे में कोई ऐब देखता है, कोई बुराई देखता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक पर्दापोशी करता है, उसके बुराई को छुपा देता है, तो अल्लाह पाक उसकी सतरपोशी फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, हमें इस हदीस पाक में 5 इम्पोर्टेंट बातें पता चली कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। फिर जब भाई कह दिया तो फिर उसके बाद ये हुक्म आया कि वो उस पर जुल्म नहीं करता। फिर इस हदीस पाक का तीसरा मफहूम कि वो अपने मुसलमान भाई की हाजत रवाई करता है, उसकी हेल्प करता है, उसकी मुश्किल को आसान करता है, ना कि उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता है, ना कि उसके रास्तों को रोक के उसकी अपनी ज़मीन में से उसको नहीं जाने देना कि जी ये हमारी ज़मीन है, हमने उसको नहीं काश्त करने देना, ये हमारी गली है, इसको रास्ता रोक लेना, या और इस किस्म के आजकल के जो मसाइल हैं, तो इस किस्म के मसाइल क्रिएट ना करें, बल्कि इस किस्म के मसाइल को हल करें, तो अल्लाह ताला आप पे करम फरमाएगा और आपकी हाजत को पूरा फरमाएगा। फिर हदीस पाक का चौथा हिस्सा कि जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान भाई की
दुनियावी मुश्किल को हल करेगा, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात में से एक मुश्किल को हल करेगा। और आखिरी हिस्सा जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो किसी की पर्दापोशी फरमाएगा, अल्लाह पाक रोज़े महशर अल्लाह पाक उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया है कि इंशाअल्लाह इस पे हम मुकम्मल मुसलमान के किरदार, इखलाक और उसके करैक्टर के ऊपर हम मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। आज मैं सिर्फ चंद अहादीस जो है उसका रेफरेंस पेश कर रहा हूँ। इसी तरह से जो मुसलमानों के हकूक हैं, मुसलमानों के जो राइट्स हैं एक दूसरे के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे कि मुसलमानों के, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे क्या राइट्स हैं, क्या हकूक हैं, जो आम हकूक हैं, जो एक जनरल हकूक हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे जो हक है वो सबसे बड़ा ये है कि मुसलमान सलाम में पहल करे। एक मुसलमान अगर अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई को देखे तो सबसे पहले उसे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सबसे पहले उसे सलाम कहे, और फिर जिसे सलाम कह रहा होगा, जो सलाम सुन रहा होगा, उसका क्या हक है कि वो सबसे पहले उसके सलाम का जवाब दे। तो मेरे भाइयों, ये इस किस्म के जो हकूक हैं उनको हम बड़े ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मुख्तसर सी एक हदीस पाक जो कि बुखारी शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे 6 हक हैं, 6 हक हैं। सबसे पहला हक कि वो जब मिले तो सबसे पहले सलाम करे। फिर दूसरा हक कि वो जब कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दावत दे तो वो उसकी दावत को कबूल फरमाए। तीसरा हक कि जब भी एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई को कोई मशवरा दे तो उसको सही मशवरा फरमाए, वो मशवरा दे जो वो अपने आप के लिए पसंद करता है, ऐसा मशवरा दे, ना कि उसे धोखा दे। तीसरा हकूक ये था कि सही मशवरा फरमाए। चौथा हकूक कि जब उसे कोई बीमारी आए तो अपने मुसलमान भाई की इयादत करे, उसकी इयादत करे, यानी उसकी बीमारी में उसको मिलने जाए, इसका इतना अजर है ये। और फिर उसके बाद अगर कोई मुसलमान भाई फौत हो गया तो फिर उसका जनाजा पढ़े, उसके जनाजे के साथ उसके जनाजे में शामिल हो। इसके अलावा 6वां हकूक यहाँ तक डिफाइन किया गया हुआ इस हदीस पाक में कि जब मुसलमान भाई को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो वो दूसरा शख्स उसका जवाब दे। तो मेरे भाइयों, ये आप देखें कि एक एक हदीस पाक हमें क्या क्या सबक सिखाती है, क्या क्या हमें चीज़ें सिखाती हैं। एक एक हदीस में इतनी बड़ी लॉजिक्स और हिकमत हैं, इतनी बड़ी हमारी करैक्टर को बिल्ड करने के लिए और हमारे इखलाक और किरदार को अच्छा करने के लिए इतनी तालीमात हैं कि अगर इंसान एक एक हदीस के ऊपर भी अमल करे रोज़ाना तो वो बहुत सी बुराइयों से, बहुत सी परेशानियों से, बहुत सी मुसीबतों से बच जाता है। आखिरी महफिल पाक के चंद मिनट रह गए हैं, इसमें मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कुरान करीम की आयत मुकद्दसा जो सूरह बकरा में मौजूद है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ अल्लाह ने अता फरमाया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करना।
इस कुरान करीम की आयत का मफहूम है कि जो कुछ अल्लाह पाक ने अता फरमाया, यानी जो नेमतें अल्लाह पाक ने अता फरमाई, वो अल्लाह की राह में खर्च करना। अब मिसाल के तौर पे जो साहिब इल्म हैं, उनको अल्लाह पाक ने इल्म की नेमत अता फरमाई, उनको चाहिए कि वो अपने इल्म को आगे लोगों तक पहुंचाएं, उस इल्म को फैलाएं, उस इल्म को आगे ट्रांसफर करें, ताकि बहुत से लोग उस इल्म से फायदा उठा सकें, बहुत से लोग उस इल्म से फायदा उठा सकें। जितने लोग उस इल्म से फायदा उठाएंगे, अल्लाह पाक उतना ही आगे इल्म बढ़ेगा और वो उस्ताद के लिए भी जो है वो दुआ का जरिया होगा। तो ये नेमत है इल्म बांटना भी। इसी तरह से जो साहिब इख्तियार हैं, जिनको अल्लाह पाक ने मनसब अता फरमाया, जिनको अल्लाह पाक ने कोई हुकूमत, कोई ओहदा अता फरमाया, सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारे पास कोई ओहदा है, कोई मनसब है, कोई ताकत है, मालो दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, जो कुछ भी है उसमें हमारा कमाल नहीं, ये अल्लाह का अता करता है। ये दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत, ये ओहदा, ये हुकूमत, ये मनसब, ये सब कुछ अल्लाह पाक का अता करता है। और जो कुछ अल्लाह पाक अता फरमाए, वो जितने वक्त के लिए अता फरमाए, वो जिस जिस लम्हे के लिए अता फरमाए, उसको आप बड़े ही जिम्मेदारी के साथ उसको आप आगे अवाम के फ़ायदे के लिए, मखलूक खुदा के फ़ायदे के लिए, भलाई के लिए आप खर्च करें। जिसको ताकत अता फरमाई, वो अपने ताकत के ज़रिए गरीबों की, मुताजों की, मस्कीनों की मदद करे। जिसको दौलत अता फरमाई, साहिब दौलत है, वो अपनी दौलत का कुछ हिस्सा जो हमारे इस्लाम में बताया गया है, वो ज़कात का कुछ हिस्सा है, अपनी दौलत को पाक को साफ करने के लिए वो खर्च करें। फिर उसके बाद अगर मज़ीद वो खर्च करना चाहे तो सदकात हैं, खैरात हैं। इसी तरह से जो अल्लाह के वली हैं, जो सूफ़ी हैं, दरवेश हैं, आरिफ हैं, वो अपनी मार्फत, अपने इखलाक, अपनी तालीमात को आगे फैलाएं। वो जो आरिफ हैं, वो मार्फत की बातों को आगे फैलाएं, ताकि भलाई आगे फैले। मेरे भाइयों, तो ये सब कुछ अता करदा अल्लाह पाक का है। और जो परेशान हालों की परेशानी, जो मुसीबत ज़दों की हाजत पूरी करता है, अल्लाह पाक उस पे करम फरमाता है, उससे खुश होता है। मेरे भाइयों, हदीस शरीफ में जहाँ मैंने आपको समझाया, वहाँ मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि ये नेमतें जो अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं, दौलत है, इल्म है, ताकत है, शोहरत है, इज्जत है, ये जो भी हमें अता किया गया है, अगर हम इसको अच्छी तरह से राइट डायरेक्शन में, एक राइट पाथ पे खर्च करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, आगे ट्रांसफ़र करेंगे लोगों की भलाई के लिए, तो ये हमारे लिए, हमें अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाएगा, हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया होगा। चाहे इल्म है, चाहे दौलत है, चाहे ओहदे हैं। और अगर हम इस पे गरूर और तकब्बर करेंगे या नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो दौलत का नाजायज़ इस्तेमाल है, चाहे वो इल्म का नाजायज़ इस्तेमाल है, चाहे वो ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल है, चाहे वो हुकूमत के अरकान और मेंबर्स का नाजायज़ इस्तेमाल है, चाहे वो अपनी मनसब को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करेंगे और हमारे लिए बायस से वबाल होगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमाए। आमीन। आखिरी हदीस पाक जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ,
وہ آج کرونا وائرس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے. بڑی بڑی جو سپر پاورز ہیں، جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی تھی، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور وہ یہ مان گئے ہیں کہ حاکمیت اور الٹیمیٹ پاور وہ ہمارے پاس نہیں، وہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. وہ طاقت، وہ پاورز، وہ سب کچھ کسی اور کے پاس ہے. آج وہ بڑی بڑی سپر پاورز وہ بھی بالکل اپنے سروں کو جھکا کے بیٹھ چکے ہیں. ایسے ممالک بھی، ایسے لوگ بھی. اور یقیناً ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اصل طاقت، اصل اختیار وہ اللہ پاک کے پاس ہے. وہ اللہ ہی کی ذات پاک ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، جس کے پاس جو چاہے وہ خالق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہر کوئی پریشان ہے کہ پتہ نہیں اس کی زندگی کے کتنے لمحات ہیں، کتنے سانس اس کو ملیں گے. تو میرے بھائیوں، حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی زندگی میں اضافہ چاہیے، میں آپ کو اس کا مفہوم اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں. اگر کسی کو اپنی زندگی یعنی عمر میں اضافہ چاہیے، عمر دراز چاہیے، تو اور اس کے ساتھ ساتھ عمر دراز کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی مال میں اضافہ چاہیے، تو میرے بھائیوں، اس کو جو عمل کرنا ہے وہ عمل یہ ہے کہ اپنے خونی رشتہ داروں پہ احسان کریں. یعنی اگر آپ کو اپنی زندگی کو بڑھانا ہے، اپنی مال و دولت میں اضافہ چاہیے، تو اپنے خونی رشتہ دار، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، اپنے چچا، اپنے پھپھیاں، اپنے خالہ، دیگر جو آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، اس پہ احسان کریں، اس سے نرمی سے بات کریں، اس پہ کرم کریں، یعنی اچھا برتاؤ کریں. تو میرے بھائیوں، ان شارٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ احسان کریں، ان سے عدل کریں، ان پہ رحم کریں، ان کی مشکلوں کو حل کریں. میرے بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. تمام احباب اپنی نیک حاجات کو اپنے دل میں رکھیں اور میرے ساتھ مل کے دعا فرمائیں. بالخصوص میرے لیے دعا فرمائیں، دربار شریف کے لیے دعا فرمائیں. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سب کی خدمت میں جو گزارشات عرض کروں، اللہ تعالیٰ مجھے حق بتانے کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب میرے ساتھ مل کے دعا فرمائیں. چند دنوں قبل معین صاحب، المعروف رفیع صاحب، جو پشاور میں ان کا انتقال ہوا ہے کرونا وائرس کی مرض کی وجہ سے. وہ خلیفہ صوفی جاوید صاحب کے قریبی عزیز تھے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرمائے. کرونا کی مرض کی وجہ سے پشاور میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے سلسلے کے بڑے ہی روحانی شخصیات جو گزشتہ دنوں میں دنیا فانی سے رخصت ہوئی، ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیں. تمام احباب میرے ساتھ مل کے دعا فرمائیں. جو آپ کی نیک حاجات ہیں، نیتیں ہیں، وہ نیت کر لیں اور اس کے بعد مل کے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. آمین. یا رحمان الرحیم، آج کی اس محفل میں
जो कलाम इलाही दरूद सलाम वज़ाइफ ज़िक्र अस्कार के उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। हदियतन तोहफतन पेश करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी औलाद पाक, आपकी अज़वाज मुतहरात, तमाम असहाबा कराम, तमाम शुहदा, तमाम औलिया कामिलीन को ए मालिक अपने कलाम की बरकत के तोफ़ैल जितने अहबाब सुन रहे हैं, जितने महफिल में मौजूद हैं, जितने देख रहे हैं, या अल्लाह सब की नेक हाजात को कबूल फरमा, सब पे रहम फरमा, सब पे फजल फरमा, सब पे करम फरमा, सबको खुशियाँ नसीब फरमा, सबको बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह जिन जिन अहबाब ने दुआओं के लिए कहा, ए मालिक सबकी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह जो हमें देख रहे हैं पाकिस्तान से और दीगर ममालिक से, सऊदी अरब से, दुबई से, बांग्लादेश से, इंडिया से, या अल्लाह इंग्लैंड से, अमेरिका से, ए मालिक सब पे करम फरमा। या अल्लाह सबको हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की तकलीफ से महफूज फरमा। ए मालिक जो कतर से देख रहे हैं उन पे रहम फरमा। या अल्लाह या रहमान रहीम तमाम खुलफाए कराम, तमाम अकीदतमंदों के दराजात को बुलंद फरमा। तमाम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम गुलामान पंचतन पाक, या अल्लाह सब के दराजात को बुलंद फरमा। बिलखसूस खलीफा सूफी जावेद साहब के दराजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह सूफी पीर अब्दुल कादिर साहब के दराजात को बुलंद फरमा। ए मालिक खलीफा सूफी जमील साहब के दराजात को बुलंद फरमा। ए मालिक तलहा अहमद शहीद साहब के दराजात को बुलंद फरमा। नूरुलैन साहब के वालिद मोहतरम के दराजात को बुलंद फरमा। परवेज साहब की वालदा मोहतरमा सूफी साहब के दराजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह हाल ही में लाल पीर साहब वफात पाए, ए मालिक उनके दराजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमा। उनके तमाम साहबजादगान को, लवाहिकीन को सब्र अता फरमा। ए मालिक या रहमान रहीम रफ़ी साहब, या अल्लाह हाल ही में फौत हुए, मालिक उनके दराजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह जितने अहबाब महफिल में मौजूद हैं, ए मालिक सबकी दुआओं को कबूल फरमा। सब पे रहम फरमा, सब पे करम फरमा, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा। ए मालिक हम मांगने वाले गुनाहगार हैं, खताकार हैं, तू अता करने वाला गफूर और रहीम है। ए मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, पंचतन पाक के वसीले से, हसनैन करीमैन के वसीले से, या अल्लाह सब पे करम फरमा, रहम फरमा। आज या अल्लाह पूरी दुनिया या अल्लाह इस वबा की वजह से परेशान है, या अल्लाह मुश्किलों के शिकार है, या अल्लाह तकलीफ में है, रोजगार की परेशानियां हैं, या अल्लाह सबको शफा अता फरमा, सब पे रहम फरमा। ए मालिक शेख आफ्ताब साहब पे रहम फरमा, उनको सेहत कामला अता फरमा। या अल्लाह उनके घर के तमाम फर्द की खैर फरमा, उनके बच्चों बच्चियों को खुशियाँ नसीब फरमा। ए मालिक जिन जिन अहबाब ने दुआओं के लिए कहा, तारिक साहब, मामून, अकबर साहब, इनामुल्लाह साहब, खलीफा हाजी बशीर साहब, खलीफा मोहम्मद आजम साहब, पीर ज़ियाउर रहमान साहब, शाह फैज़ल कबीर बदरी साहब, साहबजादा मुनीरुद्दीन रफ़ीकी साहब, या अल्लाह सब पे अपना करम फरमा। ए मालिक दीगर ठेकेदार सैफी साहब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, दरबार शरीफ के बड़े ही अच्छे अकीदतमंद थे, या अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमा। दीगर पिशावर वाले को हाट वालों में से जो फौत हुए, ए मालिक सब के दराजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह जो कश्मीर से देख रहे हैं, ए मालिक कसीर तादाद में मौजूद हैं, ए मालिक उन पे रहम फरमा, उन पे करम फरमा, उनको आज़ादी की दौलत अता फरमा। या अल्लाह उनको इस बर्बरियत से बचा। ए मालिक कश्मीर को आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं, ए मालिक सब पे करम फरमा, सब पे फजल फरमा, सब पे रहम फरमा। या अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सबकी परेशानियों को दूर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।